A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the part B of class 11th accountancy. And in the part B of class 11th accountancy, we discussed the first chapter, that is a financial statement of sole proprietorship. Basically, when we are talking about the financial statement of sole proprietorship, so it includes the two statement, income statement and position statement. In the income statement, sole proprietor prepared the two types of the account. That is, number one is a trading account and number two is a profit and loss account. With the help of the trading account, sole proprietor wants to know the gross profit or gross loss of his business, and for the preparation of the with the help of the preparation of profit and loss account, sole proprietor wants to know its net profit or net loss. And the second important financial statement which are also prepared by the sole proprietor, that is balance sheet. With the help of the balance sheet, sole proprietor wants to know its uh, assets, capital and liability of the business. Okay, so when we are talking about the financial statement of sole proprietor, so we can see that there are basically three statement and accounts are prepared. Number one is a trading account, number second profit and loss account, and number third is a balance sheet. Okay, so in the last video we discussed what is trading account, how sole proprietor prepare its trading account, it means trading account of his business, and how sole proprietor calculate gross profit or gross loss with the help of the trading account as well as the various formulas. So in this video, first of all, we discussed the theoretical aspect of trading account as well as the various formulas by which we easily calculate the gross profit and gross loss. It is already discussed in the last video, but in this video, first of all, we revised all the important component related to the trading account. That is, what is trading account, what are the feature of the trading account, how we calculate a gross profit or gross loss with the help of the various formulas, and thereafter how sole proprietor prepared trading account of his business. And thereafter, we will move to the journal entries related to the trading account. So let us start the today's videos. Okay, so all the best. So let's we move to the explanation part of the each and every statement or account which are included in the financial statement of sole proprietorship. The first account, as you know very well, which are included in the income statement of sole proprietorship, that is trading account. यानी सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट होता है दैट इज एन इनकम स्टेटमेंट, उसमें हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? द फर्स्ट अकाउंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय अस, दैट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट. So what is trading account? Please note down in your copy. It is the first step, it is the first stage in the process of final accounts. That is a final statement. यानी ये सबसे पहला अकाउंट होता है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं इन द फाइनल स्टेटमेंट. सो इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनल अकाउंट. This account shows this account shows gross profit or gross loss. This account shows gross profit or gross loss incurred by business
at the end of अकाउंटिंग ईयर। यानी ये अकाउंट क्या शो करता है, साल के एंड में यानी अकाउंटिंग ईयर के एंड में हमारे बिजनेस ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट या कितना ग्रॉस लॉस इनकर्ट किया है। ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसने एंजॉय किया है और ग्रॉस लॉस किया है तो उसने इनकर्ट किया है। बेसिकली दिस अकाउंट, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, दिस अकाउंट shows the relationship between shows the relationship between sales and cost of goods sold, cost of goods sold। सो बेसिकली ये जो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ये दो आइटम्स के बीच में, दो पर्टिकुलर टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। फर्स्ट वन इज द सेल्स, सेकेंड वन इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो व्हाट इज द सेल्स? सेल्स मीन्स, सेल्स का यहां मतलब है नेट सेल्स है। सेल्स मीन्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सो याद रखिएगा, सेल्स का मीनिंग है यहां पर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न से। और दूसरा, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन शॉर्ट वे वी कैन से दैट COGS, cost of goods sold। So what is the formula of cost of goods sold? That is opening stock plus net purchase plus direct expense। so ये जो एरोज है ना, इसको आप बाउंड्री लाइन समझ लेना, ताकि यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है, यहाँ मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। So sales equals to sales minus sales return and cost of goods sold equals to opening stock plus net purchase plus direct expense minus closing stock। अब यहाँ पे आपके मन में पॉइंट आएगा, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? एनी स्टॉक विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। Net purchase means purchase minus purchase return, and direct expense means any expenses which are incurred by the business directly, which are related to the uh, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सो उसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, तो उनको भी आप लिख लो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सो दे आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंस, लाइक अ फ्रेट, carriage। If we are talking about the carriage inward, so it will be a direct expense. If we are talking about the carriage outward, it will not be taken as the direct expense. Carriage inward is a direct expense. Carriage is a direct expense, but carriage outward is an indirect expense because it is related to the sale of the production, not a purchase of the product, purchase of the goods. So freight, carriage, and very kind of the wages. When we paid the wages to the laborers, it is also included in the direct expenses। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और भी बहुत तरह के एक्सपेंसेस आते हैं, लाइक पावर एंड फ्यूल, power and fuel, it is also categorized under the direct expense। and any kind of the factory expenses, जो factory expenses होते हैं, it will be also included in the, suppose factory rent, factory lighting, so all the expenses will be included in the direct expense। so मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूँ जिस फॉर्मूला के बेसिस पे यू विल फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सो यू कैन सी दैट मैंने आपको बेसिकली बताया कि ये अकाउंट किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, दैट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट? दैट इज द सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस में कई तरह के एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, लाइक अ फ्रेट, कैरेज, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंस एंड रॉयल्टी। Okay, because all these expenses are related to the production process of the any goods। so how we will prepare the how we will calculate the gross profit and gross loss? Because ultimately the objective of trading account is to calculate the gross profit or gross loss। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का जो फाइनली पर्पस होता है वो यही होता है कि हम कैसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करें। तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वैल्यूएशन करना आना चाहिए. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट, सो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ये अपनी कॉपी में आप बहुत अच्छे से लिख लो कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है. दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अगर हमारी सेल्स ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो, सो दैट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट. And suppose in any question your cost is higher than the sales, your cost of goods sold is higher than the sales, so it reflects the negative balance and this will be known as a gross loss. So gross profit कैसे आएगा? Sales minus cost of goods sold. And loss कैसे आएगा? Cost of goods sold minus net sales. और कब आएगा लॉस? जब हमारा कॉस्ट ज्यादा हो और सेल्स की वैल्यू कम हो. So these are the important formulas by which you can easily calculate the amount of gross profit or gross loss. In summary, I want to say that कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालने के लिए बेसिकली दो एलिमेंट पता होने चाहिए, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेल्स कैसे निकलेगा? यू कैन सी दैट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? यू कैन सी दैट. डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से आइटम्स आएंगे? यू कैन सी दैट. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? ये भी आपको दिख रहा होगा आराम से. ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड कि हाउ वी विल कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज. बट हाउ वी विल प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट? आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करोगे? बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. द फॉर्मेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज एज फॉलोज. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द नेम, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. फॉर दी ईयर एंडेड, जिस डेट को आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करो. जनरली इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर. If we follow the calendar year, so it will be prepared on 31st December, and if we follow the financial year, so it will be prepared on 31st March. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. The format of the trading account are as follows. First of all, we write down the particulars, rupees. So basically इसमें 4 कॉलम्स होंगे, जिसमें 2 कॉलम पर्टिकुलर्स के होंगे और 2 कॉलम अमाउंट्स के होंगे. और जो ये बीच में आपको बॉर्डर दिख रहा है फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का पर्टिकुलर्स रुपीस, इट विल बी नोन एज द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट विल बी नोन एज द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है रियल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट. एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड. सो उसमें जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और जितने भी इनकम्स होंगे उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. सो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक. ये फॉर्मेट अगर आपको याद हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. टू परचेज, and if any kind of return regarding the purchase, that is a purchase return, so it will be deducted from the purchase, and we write down the amount column as a net purchase. Purchase में से net purchase ही हमें लिखना है. तो purchase में से हमें क्या माइनस कर देना है? Purchase return. And purchase return को हम purchase return भी बोलते हैं, you know very well, as well as the return outward भी बोलते हैं. As well as we write down the all the direct expense on the debit side of the trading account. Direct expense means, you know very well, freight, carriage, wages, power and fuel, factory expense and royalty. तो आप इन सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में शो करोगे. सर क्रेडिट में क्या शो करेंगे? पहला तो सेल्स, क्योंकि इट इज एन इनकम, माइनस सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न को हम माइनस करेंगे और नेट सेल्स को हम लोग अमाउंट में राइट डाउन करेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दैट कि सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद नेट सेल्स को हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे और एक और आइटम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हैं बिकॉज इज एन एक्सपेंस, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज अ अमाउंट ऑफ द स्टॉक व्हिच आर हेल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. जो भी हमारे पास स्टिल बचा हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक, जो भी बिका नहीं है, सो इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द इनकम. ओके, सो यू कैन सी दैट हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख दी. अब हम इसको टोटल करेंगे, यानी इनकम्स को ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे. और अगर हमारा एक्सपेंसेस साइड कम पड़ता है, इट मींस आवर इनकम इज ग्रेटर देन द एक्सपेंसेस, सो इट विल बी ट्रीटेड एज द ग्रॉस प्रॉफिट. यानी अगर डेबिट में कोई बैलेंस आता है, सो इट विल बी टेकन एज द ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर हमारा क्रेडिट में कोई बैलेंस आता है, सो इट विल बी नोन एज द ग्रॉस लॉस. बैलेंस करने का मतलब यू कैन सी दैट लेजर में आपने पढ़ा, बैलेंस करते हैं ना, दोनों साइड इक्वल करते हैं. अगर 10,000 है तो उधर भी 10,000 आना चाहिए. मान लो टोटल करके 8,000 आ रहा है तो 2,000 विल बी टेकन एज अ ग्रॉस प्रॉफिट. और अगर क्रेडिट में कोई बैलेंस आता है, सपोज डेबिट में टोटल करके 8,000 आ रहा है,
ठीक है, और क्रेडिट में 8,000 आ रहा है, 2,000 विल बी टेकन एज अ ग्रॉस लॉस। मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि एक ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकता। यू कैन सी दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो उसे ग्रॉस लॉस होगा। ओके, सो यू कैन सी दैट हाउ विल यू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। Any doubt? I hope it is clear for you. Let's we take the few question related to the trading account. कुछ questions ले लेते हैं, उसको solve करते हैं, and we will find out the gross profit or gross loss with the help of the account as well as with the help of the formulas. Okay. So after revise all the component of trading account, that is the various formulas related to the trading account, which helps to us to calculate the gross profit or gross loss of the business, and how sole proprietor prepared its trading account by which he can also calculate the gross profit or gross loss of the business. Now we will move to the next part of this video, that is general entries related to the trading account. So what are the general entries related to the trading account? So let's we see it. Okay. बेसिकली हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम इजीली अपने बिजनेस की एट द एंड ऑफ द ईयर ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस कैलकुलेट कर सके। ओके, सो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने का दो तरीका है, आइदर वी कैलकुलेट फ्रॉम इट्स फॉर्मूलाज, आइदर इट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. So you can see that while we prepared in trading account, so we write down in the debit side to opening stock, to purchase minus purchase return, to direct expense, and in the credit side we write down by sales minus sales return and by closing stock. Okay, so with the help of trading account we can easily construct the journal entries which are related to the trading account. The first entries for items, first entries which are related to the trading account, that is for items on the debit side, यानी उनके लिए जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड अपीयर होते हैं, डेबिट साइड में, फॉर आइटम्स ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम हम लोग राइट डाउन करते हैं? सो द एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, यहाँ परचेज का मतलब होगा परचेज रिटर्न से, सो वी राइट डाउन इन दैट इज नेट परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस. तो अगर एग्जाम में आपसे एंट्रीज पूछ लें तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है एंट्रीज फाइंड आउट करना. ओके, द सेकेंड एंट्रीज विच आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज फॉर आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड, फॉर आइटम्स on the credit side. So the entry will be sales account debit, and this is also will be taken as a net amount. Number second is a closing stock to trading account. So you can see that the two basic entries which are related to a trading account are passed. First entries which are related to the items which are appear on the debit side of the trading account, and second entry which are related to the items which are appear on the credit side of the trading account. And after appearing the items on the debit side as well as the credit side, after that we take the balances. बैलेंस या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है, यू नो वेरी वेल. जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या तो ग्रॉस लॉस आता है. सो बेसिकली जो थर्ड एंट्रीज होती हैं विच आर रिलेटेड टू द ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, सो द एंट्रीज विल बी अ trading account debit to gross profit, and number 4 entries are for gross loss. The entry will be a gross loss account debit
to trading count, because you know very well जब gross profit आता है तो it will be shown in the debit side of the trading count, that's why trading count will be debited, and जब भी gross loss आता है so it will be appear on the credit side, that's why it will be that's why trading count will be a credited. Okay, so this is a basic journal entries which are related to the trading count. You can see that firstly we pass the entries with the items which are appear on the debit side on the trading count, and thereafter we pass the journal entries which are for the items which are appear on the credit side, and thereafter we find out the balance. Either we found a gross profit or the gross loss. Okay, so let's we move to the next topic. Let's we take the one more question for creating a better understanding regarding the trading account. The very important formulas which are also available for the solution of the some of the important conflict question. So उस तरह के conflict question को solve करने के लिए please note down the important things. That is, what is the formula of adjusted purchase? Sometimes in the question आपको adjusted purchase given होता है. Adjusted purchase means एक ऐसा purchase जिसमें already हम opening stock और closing stock का adjustment कर चुके होते हैं. So what is the formula of adjusted purchase? The formula of adjusted purchase, that is opening stock plus purchase minus closing stock. It means जब भी कोई adjusted purchase given है तो हम उस कंडीशन में हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को डिफरेंटली कैलकुलेट करने या डिफरेंटली कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है. इसको हम और अच्छे समझते हैं क्वेश्चन से. द क्वेश्चन इज प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट with the help of following information. कुछ इंफॉर्मेशन दी हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वी हैव टू प्रिपेयर दी ट्रेडिंग अकाउंट. एंड व्हाट आर दीज इंफॉर्मेशन? सो द इंफॉर्मेशन नंबर वन इज एडजस्टेड परचेस. जैसे मैं आपको बोल रहा था, एडजस्टेड परचेस दैट इज रुपीज 15 लाख sales rupees 18,50,000. Number third, freight rupees 5,000. Next, wages rupees 15,000. And next one is a freight. Freight, that is a carriage outward. Carriage outward, that is a 5,000. So in this question, you know very well, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज इज गिवन. तो एडजस्टेड परचेज मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इट मींस इसमें ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक ऐड है और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी क्या है, माइनस है. सो व्हाइल वी प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन एज अ सॉल्यूशन, तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करने की जरूरत नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि वी ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द opening stock and closing stock in the adjusted purchase. So first of all we write down the opening stock, but already वो include है. adjusted purchase और दिया भी नहीं है क्वेश्चन में. अगर क्वेश्चन में सपोज दे देता, so या तो आप क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को अलग कर देते एडजस्टेड परचेज में से, या फिर आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को सेपरेटली शो ही नहीं करते. जैसे इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी गिवन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन नहीं. सपोज दैट, ठीक है, मैं ये बोल दूं यहां पे, मैं ऐड कर दूं अपने से कि ओपनिंग स्टॉक विल बी ऑफ 10,000, सॉरी 40,000, एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी ऑफ 50,000. सो यू हैव टू कैलकुलेट द नेट परचेज, क्योंकि यू नो वेरी वेल आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इधर क्या लिखना होता था, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है,
सो मैंने क्या कहा, सेल्स ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में 18,50,000, नोट कर दिया. क्लोजिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 50,000. The purchase is not clear because adjusted purchase is given. Opening stock and closing stock is also given. So opening stock परचेस को वैसे ही छोड़ दो. हाँ, ओपनिंग स्टॉक हम लिख सकते हैं, दैट इज 40,000. परचेज अभी क्लियर नहीं है हमारा क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द परचेज. ओके, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इज अ फ्रेट. फ्रेट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस बट कैरिज आउटवर्ड इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस. तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा आपका, आएगा पहला फ्रेट, दैट इज 5,000 and wage is 15,000. ओके, सो आपने डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या लिख दिया, फ्रेट लिख दिया एंड वेजेस लिख दिया. अब आपको परचेस कैलकुलेट करना है. तो हाउ विल यू कैलकुलेट द परचेस? एडजस्टेड परचेस विल बी अ 15 lakh. आउट ऑफ देम ओपनिंग स्टॉक इज 40,000. परचेस इज नॉट given and closing stock is a 50,000. So when you calculate the purchase, तो आप क्या करोगे, 50,000 यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा और 40,000 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. So with the help of the following above formulas, we have to calculate the value of purchase, that is 15 lakh plus 50,000 minus 40,000, that is 15 lakh 10,000. So your net purchase will be a 15 lakh 10,000. Okay, is that clear? And after that you will calculate the total. 18 lakh 50,000 plus 50,000, that is a 19 lakh. इधर भी कितना आना चाहिए, you have to calculate the 19 lakh and balance amount will be taken as the gross profit. GP is a gross profit. मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, that is a gross profit. How will you calculate the gross profit? 19 lakh में से इसको माइनस करो, 1510, 1550 and 20, 50 and 20, 1570, 1570 and 19 lakh minus कर दो. So we will find that 3,30,000 as a gross profit, and yes, my answer is correct. That is, gross profit of this question is 3,30,000. So you can see that how we will prepare the trading account when in any question there's a information given about the adjusted purchase. So at the end of today's video, let's we take the some of the important short answer type question which are based on the specific cases. So let's we take this. इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली गिवन है इंफॉर्मेशन के बारे में, यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैव अ मिक्सचर अबाउट द डिफरेंट कंडीशन. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट कंडीशन इंक्लूड होती हैं. So let's we take the question, that is a net sales is rupees 16 lakh. The next question is, if a net sales rupees 6 lakh and gross profit is 25% on cost. Gross profit is 25% on cost. तो क्वेश्चन में ये गिवन कर दिया कि सपोज नेट सेल्स इज 6 lakh, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. फाइंड आउट दी ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड आउट दी ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. दिस इज अ क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दिया और कह रहा है जीपी और सीओजीएस निकालो. So basically you know very well GP is 25% on cost, and what is the formula of sales? What is the formula of GP? The formula of GP, that is a gross profit equals to sales minus cost of goods sold, as it is. जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है. तो GP कैसे कैलकुलेट होती है? सेल्स में से आप क्या माइनस करते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आपको सेल्स तो पता है बट यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट? नो. हाँ, इतना पता है कि GP 25% ऑन कॉस्ट है. तो आप यहां देखो ध्यान से, लेट वी यू एज्यूम द कॉस्ट इज 100. आप एज्यूम कर लो कि कॉस्ट आपकी कितनी है, 100 है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, एंड जीपी इज 25%. तो जीपी को आप ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 100 का 25%, दैट इज 25. सो योर सेल्स वैल्यू विल बी 125. यस सर, इज इट क्लियर?
कॉस्ट आपने माना 100, जीपी कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट कितनी है 100, 100 का 25 कितना हो गया 25, सो योर सेल्स विल बी 125. हाउ? बिकॉज सेल्स कैसे निकलता है, जब आप ये कह सकते हो सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी. यस सर. तो अगर कॉस्ट में अगर जीपी ऐड कर दो तो सेल्स आ जाएगा. यस. तो सेल्स की वैल्यू तो गिवन है. यस सर. सो सेल्स इज 6 लाख एंड यहाँ आप इसको डिवाइड करो 125 से, और आपको मान लो क्या कैलकुलेट करना है, सपोज जीपी कैलकुलेट करना है. सो हाउ विल यू कैलकुलेट द जीपी? सो जीपी इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि जीपी का यहाँ अर्थमेटिकल वैल्यूज हैं 25. और अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्म कैलकुलेट करना है, सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100. सो जीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 on the 5, 1,20,000, and what? 4,80,000. So your answer will be GP is 1,20,000 and cost of goods sold 4,80,000. Okay, so I hope it is clear for you how we will calculate the gross profit and cost of goods sold with the given of small information. और इस तरह के क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. Okay, so I hope today we cleared all the doubts, all the topics very easily, all the questions very easily. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर.